Welcome everyone. Today we are going to discuss trigonometric equation and their principal solution. To understand the trigonometric equation, first we should know that what are the trigonometric functions, and second is in which quadrant trigonometric functions are positive and in which they are negative. In the previous standard we have already studied trigonometric ratio. Sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. These are 6 trigonometric ratios are called trigonometric function. Now, in which quadrant sin theta is positive and in which quadrant cos theta is negative? To understand this, first we have to draw xy plane. Horizontal line is called the x-axis and vertical line is called the y-axis. Now, if we move from positive x-axis in anti-clockwise direction, then we get first quadrant, second quadrant, third quadrant and last fourth quadrant. In the first quadrant, all trigonometric ratios are positive, that is sin theta, cos theta, tan theta, sec, cosec and cot theta, ये सारे trigonometric ratios की value positive होती है. In the second quadrant, sin theta and its reciprocal cosec theta positive होता है. In the third quadrant, tan theta and its reciprocal cot theta is positive. In the fourth quadrant, cos theta and its reciprocal sec theta is positive. इसको याद करने की एक ट्रिक है, अगर हम यूज करें तो अगर देखिए मैं यहां लिख रही हूं ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, ऑल मीनिंग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं. School start from S and sin theta is also start from S. So sin theta and cosec theta is positive in the second quadrant. Third, 2 start from T and tan theta is also start from T. So that is in the third quadrant tan theta is positive. Now college also start from C and cos is also start from C. तो in the fourth quadrant cos theta is positive. That is अगर ये sentence हमने learn कर लिया all school to college, तो हम बहुत easily ये learn कर सकते हैं कि in which quadrant trigonometric ratios is positive and in which quadrant trigonometric ratios are negative. Here I have written some trigonometric formulae. First, sin 90 minus theta is equals to cos theta. Second, 90 plus theta is equals to cos theta. Sin 180 minus theta is equals to sin theta. But cos 180 minus theta is equals to minus cos theta. How to remember these formulae? I have a trick, और इस ट्रिक को यूज करके आप इजिली ये फॉर्मूलेस लर्न कर सकते हैं. फर्स्ट यहाँ देखिए हम सभी को पता है दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, तो फर्स्ट स्टार्टिंग एंगल इज 0 डिग्री, देन दिस एंगल इज 90 डिग्री, देन 180, देन 270, देन 1 राउंड कंप्लीट हुआ तो दिस इज 360 डिग्री. फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम 90 माइनस थीटा लिखते हैं क्योंकि 90 से अगर हम पीछे जा रहे हैं तो दिस इज 90 माइनस थीटा, और 90 से आगे बढ़ रहे हैं जस्ट 90 से अगर हम आगे बढ़े तो इस क्वाड्रेंट को हम लिखते हैं 90 प्लस थीटा. नाउ 180 पे पहुंचे तो 180 पे जब हम जाते हैं तो अगर हम पीछे जा रहे हैं तो इसे हम लिखते हैं 180 माइनस थीटा, और अगर आगे जा रहे हैं तो इसे मैं लिखूंगी 180 प्लस थीटा. सिमिलरली फॉर 270 डिग्री, अगर 270 डिग्री से जस्ट मैं पीछे जा रही हूँ, पीछे मूव कर रही हूँ तो 270 माइनस थीटा, आगे मूव कर रही हूँ तो 270 प्लस थीटा. ओके, नाउ अब इसमें हमें सिर्फ ओनली 2 थिंग्स लर्न करनी है. वर्टिकल लाइन में कौन से एंगल्स आ रहे हैं? 90 डिग्री एंड 270 डिग्री. एंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन विच एंगल्स आर बिलोंग? 180 डिग्री एंड 360 डिग्री. तो हमें सिर्फ 2 चीज याद रखनी है कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री बिलोंग्स इन वर्टिकल लाइन एंड 180 डिग्री एंड 360 डिग्री बिलोंग्स इन हॉरिजॉन्टल लाइन. Now sin 90 minus theta is equals to cos theta. तो आपको ये याद रखना है, we should learn vertical line wants change and horizontal line wants no change.
वर्टिकल लाइन वॉन्ट्स चेंज, दैट मीनिंग जब भी साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे हम, साइन का आंसर कॉस में आएगा। वर्टिकल लाइन वॉन्ट्स चेंज का मतलब साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, एंड कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में, एंड टेन कन्वर्ट हो जाता है कॉट में, एंड सेक कन्वर्ट हो जाता है कोसेक में। ओके, तो दैट इज, अगर मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा दैट इज 90 किस लाइन में बिलोंग कर रहा है? वर्टिकल लाइन में। वर्टिकल लाइन दैट इज, यहां पर दो ही एंगल आते हैं 90 and 270, तो साइन 90 माइनस थीटा कन्वर्ट, जैसे हमने लिखा 90 कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। Similarly 90 plus theta, sin 90 plus theta which is belong in the second quadrant. In the second quadrant which angle is positive? Sin theta and its reciprocal cosec theta. तो sin theta that is यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 लिखा है तो 90 यानी vertical line wants change, that is cos theta. Now sin 180 minus theta, second quadrant को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 90 plus theta and 180 minus theta. यानी 180 माइनस थीटा दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम। तो इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन 180 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू द साइन थीटा। क्यों? क्योंकि 180 है तो साइन का आंसर किस में आएगा? साइन में। क्यों? क्योंकि आपके पास में हॉरिजॉन्टल लाइन 180 एंड 360 बिलोंग्स इन द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन वांट्स नो चेंज, दैट इज साइन का आंसर किस में आएगा? साइन में ही आएगा। और ऑल स्कूल टू कॉलेज जो सेंटेंस हमने लर्न किया है, ऑल स्कूल, स्कूल दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा। नाउ साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 180 प्लस थीटा बिकॉज 180 belongs to horizontal line. Horizontal line wants no change. तो that is sin 180 plus theta is equals to sin theta. Sin का आंसर किस में आएगा? sin में। But all school to college के according in the third quadrant tan theta is positive. Tan theta is positive, that is sin theta is negative. तो sin 180 plus theta इसका आंसर आ जाएगा minus sin theta. Similarly, cos 180 minus theta, cos 180 minus theta, this is also equals to cos theta because 180 belongs to horizontal line. Horizontal line wants no change, तो cos का आंसर cos में आएगा। And in the third quadrant, in the second quadrant, cos theta क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि इन द सेकेंड क्वाड्रेंट ऑल स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग साइन पॉजिटिव होता है, तो इन द सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 इन विच क्वाड्रेंट, इन विच वर्टिकल लाइन? साइन 270 माइनस थीटा दिस इज इक्वल्स टू द माइनस कॉस थीटा। व्हाई? 270 बिलोंग्स in vertical line, vertical line 270, तो vertical line wants change, that is sin किस का आंसर किस में आएगा? cos में। Now 270 minus theta which is belongs in the third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट यानी 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लिखा जाता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल टू कॉलेज दैट इज tan थीटा इज पॉजिटिव, सो sin थीटा इज नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो दिस आंसर इज क्या हो जाएगा? माइनस cos थीटा। सिमिलरली साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, देखिए 360 से अगर हम पीछे मूव करते हैं तो 360 माइनस थीटा लिखते हैं, और अगर हम 360 से आगे मूव करते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लिखते हैं 360 प्लस थीटा। तो साइन 360 माइनस थीटा दैट इज ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। नाउ 360 belongs to horizontal line. Horizontal line wants no change, that is sin का आंसर किस में आएगा? sin में ही आएगा। और in the fourth quadrant, which trigonometric ratio positive? Which trigonometric functions are positive? All school to college, college that is start from C, यानी cos theta are positive, so sin theta is negative, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? माइनस sin theta. ओके, तो इन फॉर्मूलेस को लर्न करने के लिए हमें ओनली टू थिंग्स लर्न करनी है। फर्स्ट, horizontal line wants no change and vertical line wants change, and second all school to college, all school to college के अकॉर्डिंग आपने ये लर्न कर लिया कि in which quadrant trigonometric ratios are positive and in which quadrant trigonometric ratios are negative, and vertical line only 90
एंड 270, तो वर्टिकल लाइन बॉन्ड्स चेंज, यानी साइन कन्वर्ट कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टेन कॉट में एंड सेक कोसेक में, सिमिलरली कोसेक सेक में. बट हॉरिजेंटल लाइन 180 एंड 360, तो इन हॉरिजेंटल लाइन बॉन्ड्स नो चेंज, यानी साइन का आंसर किस में आएगा, साइन में आएगा, एंड कॉस का आंसर किस में आएगा, कॉस. Sin theta. This is trigonometric function. If we write sin theta is equals to half. Now this is trigonometric equation. Why? Because in this equation trigonometric function आ रहा है sin theta. So trigonometric equation, that is an equation involving trigonometric function, is called the trigonometric equation. इक्वेशन मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, राइट हैंड साइड होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू. और इन दिस इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. नाउ अदर एग्जांपल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, tan theta is equals to 2, cos 3 theta is equals to cos 5 theta. These are the other examples of trigonometric equation. Now next one is solution of trigonometric equation. A value of variable in a trigonometric equation which satisfy the equation is called the solution of trigonometric equation. Value of variable, solution means होता है value of variable. In this trigonometric equation, variable का काम कौन कर रहा है, tan. variable का काम कौन कर रहा है, theta. तो theta का जो हमें value निकालनी है, that is we know that sin theta is equals to, अगर हाफ लिखा है तो थीटा के बेस पर मैं क्या लिखूंगी, 30. sin 30 is equals to half. We know that sin 30 is equals to half. That is here theta value is 30, यानी थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री. तो यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्रिक का इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हुआ, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज trigonometric equation has two solution, first principal solution and second general solution. आज हम केवल principal solution के बारे में डिस्कस करेंगे. The solution of trigonometric equation of an unknown angle x where x greater than equals to 0 and less than 2 pi are called its principal solution. That is, जो भी trigonometric equation रहेगी उसमें थीटा की वैल्यू जो आनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एंड लेस देन क्या होनी चाहिए, 2 पाई. लेट अस टेक एन एग्जांपल, sin थीटा इज इक्वल्स टू हाफ. sin थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, तो इसके लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेबल लर्न होना चाहिए, यानी ये आपके पास में जो आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है. sin थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो sin 0 sin 30 को हम और रेडियन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, π/6. ये भी हमें लर्न होना चाहिए. sin 45 दिस इज π/4. sin 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3. 90 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, π/2. एंड 180 को रेडियन में हम क्या लिखते हैं, पाई. तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात कर रही हूँ तो sin थीटा इज इक्वल्स टू हाफ. तो sin थीटा यानी थीटा की वैल्यू कब, आपके sin थीटा की वैल्यू कब हाफ होती है, जब हम थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं, 30. और 30 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6. दैट इज sin थीटा इज इक्वल्स टू sin π/6. ये हाफ के बेस पर हमने क्या लिखा, sin π/6, बिकॉज sin π/6 की वैल्यू कितनी है, हाफ. नाउ अभी हमने थोड़ी देर पहले थोड़े फॉर्मूले पढ़े थे. sin theta is equals to, we can write sin 180 minus theta. sin 180 minus theta is equals to क्या होता है, sin theta. तो हम इसे क्या कर सकते हैं, और ऐसा लिख सकते हैं कि sin theta is equals to sin π/6 और sin π/6. Here theta value is π/6. So we can write also sin pi minus π/6. Now pi minus π/6, that is, देखिए अगर एलसीएम ले ले तो कितना आ जाएगा, 6 1 6, 6 pi minus pi, that is 5 pi/6. तो यहाँ पर हमारे पास में थीटा की फर्स्ट वैल्यू मुझे क्या मिली, π/6, एंड थीटा की सेकंड वैल्यू क्या मिली, 5 pi/6. और ये आपके वैसे देखिए π/6 is greater than equals to 0 and less than 2 pi. 5 pi/6 also greater than equals to 0 and less than 2 pi. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें केवल दो चीज याद रखनी है कि फर्स्ट आपके पास में थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, एक तो आपके पास में फर्स्ट आपके इसमें थीटा की वैल्यू निकलेगी, दूसरा सेकंड टाइम हमें ये देखना है कि इन विच क्वाड्रेंट sin थीटा इज पॉजिटिव, बिकॉज़ sin थीटा की वैल्यू क्या है,
प्लस है। तो हमने अभी देखा कि sin थीटा इन विच क्वाड्रेंट sin थीटा इज पॉजिटिव, तो इन विच क्वाड्रेंट sin थीटा इज पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin थीटा पॉजिटिव होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा पॉजिटिव होगा। यही दो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के क्वाड्रेंट होंगे, ठीक है, इन्हीं दो में हमारा काम होगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट, इसको आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमें सिर्फ दो क्वाड्रेंट याद रखने हैं। पहला तो हमारा पाई माइनस थीटा और दूसरा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। पाई माइनस थीटा यानी हमने इसको भी थोड़ी देर पहले समझा था 180 माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए हमारे पास में दो सॉल्यूशन निकले। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे वो दो होंगे। लेट अस टेक द अनदर एग्जांपल, sin थीटा इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हमने सेकंड क्वेश्चन ले लिया है। तो sin थीटा इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। अब इसका हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको फर्स्ट यू हैव टू चेक यहाँ पे क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मुझे देखना पड़ेगा कि इन व्हिच क्वाड्रेंट sin थीटा इज नेगेटिव। तो वी नो दैट इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट sin थीटा इज नेगेटिव। सो sin थीटा इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस हाफ की जगह माइनस के प्लेस पे माइनस और हाफ किसकी वैल्यू, जस्ट लुक एट द टेबल, sin 30 इज इक्वल्स टू कितना होता है, हाफ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, sin पाई बाय 6, बिकॉज मुझे किस फॉर्म में लिखना है, रेडियन फॉर्म में। तो ये हो जाएगा माइनस sin पाई बाय 6। अब इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं, तो इसका ये प्रिंसिपल, थीटा की वैल्यू मैं पाई बाय 6 नहीं बोल सकती क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या है, sin थीटा की वैल्यू कितनी, माइनस हाफ। तो यहाँ पर थीटा वैल्यू पाई बाय 6 नहीं है क्योंकि sin थीटा नेगेटिव होता है इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने पढ़ा है sin 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस sin 180 प्लस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस sin थीटा। एंड हमें ये भी पता है कि sin 2 पाई माइनस थीटा, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे भी sin क्या होता है, नेगेटिव होता है। पाई मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 pi this is also belongs to horizontal line wants no change, sin का आंसर sin में, और sin 2 pi इसका आंसर भी किस में आएगा, sin में। अब नॉट द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट sin क्या है, नेगेटिव, इसलिए ऑल स्कूल टू कॉलेज, जो भी हमने पढ़ा था यहाँ पर ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है, कॉलेज, इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट sin क्या आएगा, नेगेटिव। ना अब हम इससे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकती हूँ, sin, देखिए यहाँ पर ये जो हमारा आ रहा है sin थीटा, दिस इज इक्वल्स टू द माइनस sin पाई बाय 6, और इस माइनस sin पाई बाय 6 को मैं लिख सकती हूँ sin पाई प्लस थीटा, और थीटा के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, पाई बाय 6। sin थीटा इज इक्वल्स टू, ये मैंने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में लिखी है, sin थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sin पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू sin पाई प्लस पाई बाय 6, यानी sin 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sin थीटा। ठीक है, तो भी यहाँ पे हम और लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sin पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू sin 2 पाई माइनस थीटा, थीटा वैल्यू इज पाई बाय 6। देखिए कितना हो जाएगा, 6, तो 7 पाई बाय 6, दिस इज इक्वल्स टू द sin 7 पाई बाय 6, ओके, एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू द 6 to the 12 11 पाई बाय 6, तो इसे मैं लिख सकती हूँ sin 11 पाई बाय 6। तो इस गिवन इक्वेशंस के जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसके दोनों सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन मुझे क्या मिला, 7 पाई बाय 6, 7 pi by 6, this is also greater than equals to 0 and less than 2 pi, and 11 pi by 6 which is also greater than equals to 0 and less than 2 pi. So 7 pi by 6 and 11 pi by 6 are the principal solution of these trigonometric equation. Okay, तो हमें सिर्फ trigonometric equation को find out ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए दो ही चीज याद रखनी है कि पहला आपके पास हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, सेकंड हमें ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ पॉजिटिव होते हैं और कहाँ नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट वाले में हमने देखा कि हाफ है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में
पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर हमारे पास में थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन के जो क्वाड्रेंट होंगे थर्ड और फोर्थ होंगे। इन द फर्स्ट एग्जांपल में प्रिंसिपल सॉल्यूशन के जो क्वाड्रेंट होंगे वो फर्स्ट और सेकंड होंगे। Thank you everyone. I hope this video will help you to understand the topic.